अ, नमस्ते आप सभी। नमस्ते इमाम जी। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज हमारे साथ जुड़े हैं इस यूथ की बात ई डायलॉग में। और मैं सभी हमारे दर्शकों को भी नमस्कार और धन्यवाद जनाना चाहूँगा कि आप सब आज हमारे साथ ये पहली बार ऐसे एक ई डायलॉग में यूथ की बात बाय यूथ ऑफ इंडिया फाउंडेशन में आप जुड़ रहे हैं। आज का विषय और आज के व्यक्ति के बारे में कहना वो कठिन ही नहीं, नामुमकिन जैसा है, क्योंकि जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलाइसी जी, ये आप में ही बहुत बड़ी हस्ती है और हमें पीस, नमन और कितने ही चीज़ों का ज्ञान और मार्गदर्शन देते रहते हैं। डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलाइसी जी आज चीफ इमाम ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक representative body of 500,000 imams of India, heads the largest imam organization in the world, having its global headquarters in London, United Kingdom. He has the distinction of addressing 3 United Nations headquarters in Geneva, in Vienna, and definitely in New York headquarters as well. UNHRC, the European Parliament, the Canadian Parliament, House of Commons, and House of Lords, Chatham House, the Royal Institute of International Affairs, a world-class think tank based in London, and many other international forums on global warming, anti-Semitism, poverty elimination, nuclear disarmament, HIV, AIDS, and anti-terrorism. His deep engagement with interfaith dialogue and conflict resolution gets him hundreds of national and international awards. He is a recipient of the highest civil awards of Abu Dhabi and UAE for his contribution in global peace. His association with the world religious organizations, bodies, and figures takes him to Pope in Vatican, to the chief rabbinate in Israel, Imam-e-Haram, Saudi Arabia, the Dalai Lama, the Nobel laureate, and the likes around the world. He is the first Imam to have the honor of nomination as Lieutenant Governor to the Middle East continent for IOED, to represent IOED in the Middle East region. He extensively travels both domestically and internationally. As a spiritual master, he carries with him a highly distinguished list of devotees cutting across all religions, opinions, and diversities. His domestic, regional, and global engagements qualify him for the place and respect that he enjoys as a chief imam of the Indian community of imams. His wider acceptance in the worldwide circle of governance, religion, spirituality, politics, and diplomacy, and the general consequence of peace and harmony gathered together enhances his stature to unparalleled levels of human excellence. We are indeed blessed to have Dr. Imam Umair Ahmed Ilaisi on this Youth Ki Baat dialogue. Thank you so much, Imam Ji, for being here with us. थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आज का जो एक विषय है, the topic for our discussion today is also very interesting, and that we have Dr. Imam with us. It's about how United Nations as a whole is also going to celebrate 75 years of its existence. And the main goal of the United Nations was solely strong on the peace, harmony, and that is exactly what Dr. Imam has also been advocating about. It is also about the role of in strengthening peaceful coexistence, और बहुत ज़रूरी है आज के समय में पूरे वर्ल्ड में that there should be a peaceful coexistence as we head towards sustainable development. I won't take much of your time and directly request Dr. Imam to kindly address us and enlighten us with his words, please. Dr. Imam, over to you. मैं सबसे पहले हमारी जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ ऑफ इंडिया फाउंडेशन, उसको और खास तौर पर शैलेश सिंघल जी को सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा कि आपने जिस तरह का मैं भी आज यूथ के साथ पहली बार मेरा इंटरेक्शन हो रहा है और मुझे भी बहुत इस बात की खुशी है। और मेरे जितने भी जो लोग हमको इस प्रोग्राम में के जरिए से जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमको देख रहे हैं, मैं सबको सलाम पेश करता हूं और मैं सबको शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम
हमको सुनने के लिए वक्त निकाला। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। भारत की जो विशेषता है वो अनेकता में एकता की विशेषता है। हम सब एक हैं। हमें सबको यही पैगाम देना है। हमारा मकसद यही है। हम बार-बार एक बात कहते हैं शैलेश जी, और जितने लोग सुन रहे हैं उनके लिए खास तौर पर, क्योंकि मेरा आज नौजवान, मेरा यूथ इसको मुझे सुन रहा है। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं, हमारी सबकी जातियां अलग हो सकती हैं, हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, हमारे पंथ अलग हो सकते हैं, हमारे इबादत करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान और इंसानियत का धर्म है। भारत में रहते हैं तो हम भारतीय हैं। तो हमेशा मेरा यही कहना है कि आओ सब हम मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, इंसान को और इंसानियत को मजबूत करें। यही हमारा धर्म है जिसे हमें निभाने की आज जरूरत है। अगर असल जरूरत किस बात की है, असल जो हमारी इंसानियत खत्म हो रही है, हमें उसको वापस उसको सही करने की जरूरत है, क्योंकि इंसान का जो धर्म है वो इंसानियत है। जहां तक आप देखेंगे कि अगर कहीं पे कोई भूखा है तो आप ये नहीं देखते कि ये भूखा कोई ये किस धर्म का है, लेकिन आपके अंदर एक इंसानियत आती है और आप उसकी मदद करते हैं ये सोचकर कि ये मेरा भाई है, ये इंसान है, क्योंकि ये इंसानी फरीजा होता है। आज पूरी दुनिया के अंदर इसी पैगाम को देने की जरूरत है। मैं भारत के तमाम, चूंकि भारत के जो नौजवान हैं, भारत एक यंग इंडिया है। मैं इसे यंग इंडिया इसलिए कहता हूं कि हमारी जो हमारी पॉपुलेशन के अंदर जो बहुत अक्सरियत है वो नौजवानों की है, यूथ की है, और यूथ हमारा आने वाला फ्यूचर है। आपके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। जो लोग चले गए, आज हम भी हैं, हम भी चले जाएंगे, ये सब आपके ऊपर जिम्मे आने वाला है। आज आप लोग, आपकी जिम्मेदारी होगी कि हमारे देश को हम कैसे आगे लेके जाएं, इस देश के अंदर रहने वालों के अंदर भारतीयता कैसे पैदा की जाए। भारतीयता तभी पैदा होगी जब हम भारतीय बनेंगे। मैं हमेशा से अपने सभी लोगों से एक बात कहता हूं कि जब हम हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं, खास तौर पे मैं मुसलमानों से भी कहता हूं कि जब हम सऊदी अरब हज करने जाते हैं, तो जब इमिग्रेशन पर सऊदी अरब के अंदर इमिग्रेशन ऑफिसर हमसे ये पूछता है कि आप कहां से आए हो, वो मेरा धर्म नहीं पूछता कभी भी, या किसी भी इमिग्रेशन ऑफिसर हमसे कभी भी, हम भारत से बाहर जाते हैं, हमारा धर्म नहीं पूछता, हमसे पूछता है कि आप कौन सी कंट्री से आए हैं। तो हम भारत के हैं, तो हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। तो इसलिए नौजवान बच्चों, मैं खास तौर पर मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा हमारी यूथ फाउंडेशन को कि आप लोग बहुत तेजी से जिस तरह से काम इस समय पूरे देश नहीं पूरे विदेशों में भी आप जिस काम को कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद भी दूंगा और आप सबके लिए आशीर्वाद भी दूंगा। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि हम सब मिलकर इसी तरह से काम को लेके अगर आगे चलेंगे तो बहुत फायदा होगा। आज इसी चीज की हमें सख्त से सख्त जरूरत है। अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर जो धर्म के लोग होते हैं उनका क्या रोल होता है, संतों के लिए सब बराबर होते हैं। धर्म सबको अच्छी बात बताता है। किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा लीजिए आपने अगर आप देखा होगा, क्योंकि मैं तो स्टडी करता रहता हूं सभी ग्रंथों को, सभी धर्मों के ग्रंथों को पढ़ता हूं, तो मुझे कहीं भी कोई नेगेटिव बात किसी की मिलती नहीं है। तो हमेशा से हमने यही कहा है कि हम सब जो है एक होकर इस काम को मिलके चलेंगे। आस्थाएं हमारी अलग हैं, मैं कैसी मेरी पूजा पद्धति है ये मेरा पर्सनल मैटर है। शैलेश जी, आपकी जो पूजा पद्धति है ये आपका मैटर है, और जो लोग देख रहे हैं सबकी अपनी अपनी पूजा पद्धति है। तो किसी को भी हम किस तरह से, कौन इबादत करता है, कौन क्या खाता है, क्या पहनता है, ये उसका पर्सनल मामला है। हमें किसी के जाती मामलात में नहीं दखल देना चाहिए। हाँ, लेकिन जब हम एक इंसान और इंसानियत की बात करेंगे, तो भारत और भारतीयता की बात करेंगे, तो वहां हम सबको एक होना पड़ता है। तो हम जब एक होके, क्योंकि आज हम आपको बता दें कि हमारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से विकास की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अगर आपका ज्यादा समय नहीं लगे तो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मैं लगातार
शैलेश जी और मेरे तमाम दर्शक, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ वर्ल्ड वाइड। एक बार की बात है, मैं अमेरिका में था। अमेरिका से मैं वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क के लिए बाय रोड निकला अपने बेटे के साथ। मेरी फ्लाइट एयर इंडिया थी न्यूयॉर्क से। तो मेरा बेटे गाड़ी चला रहे थे और मैं बैठा हुआ था आगे। तो रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया, तो हमने रास्ता डाइवर्ट करके दूसरी जगह से हम लोग निकले। हम लेट हो रहे थे, तो मेरे बेटे ने बहुत तेजी से गाड़ी को चलाना शुरू करा। तो लेकिन उनको ये मालूम था कि यहाँ के रूल रेगुलेशन बहुत सख्त हैं, वहां पुलिस आ जाती है फौरन, जैसी स्पीड अगर आप पकड़ते हैं पुलिस आ जाती है। तो लेकिन हमारी फ्लाइट मिस हो रही थी। बेटे ने कहा देखेंगे, कोई बात नहीं, चलते हैं। बहुत तेजी से गाड़ी चलने लगी, तो रास्ते में पुलिस ने हमको आके रोक लिया। पुलिस हमारे पीछे लग गई, हमको रोका। पुलिस ऑफिसर हमारे पास आए, चूंकि वहां पर रूल है कि आप बैठे रहिए गाड़ी के अंदर। तो पुलिस ऑफिसर आए। मैंने अपने बेटे से कहा कि आप मत बोलिएगा, मुझे बात करने दीजिएगा इनको। तो कहने लगे ठीक है। तो मैंने उनसे, पुलिस ऑफिसर को बोला कि मैं इमाम हूं और चीफ इमाम हूं भारत, और मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, रास्ते में एक्सीडेंट था, हम डाइवर्ट करके बहुत तेजी से जा रहे हैं, और ये हमारा टिकट है और ये हमारी फ्लाइट का टाइम है, और हमको इसीलिए हमारी मजबूरी थी, वरना हम बिल्कुल हम कानून को नहीं तोड़ते। तो उन्होंने कहा ओके, यू आर मोदी मोदी मोदी। 3 बार उसने मुझे मोदी मोदी बोलकर, यू आर अ ग्रेट कंट्री, यू आर, और आपके जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी इज द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। तो उसने इतनी खुशी से मुझे इसी जज्बात में छोड़ दिया कि मोदी के नाम पे मुझे वहां से उसने जाने दिया। ओके, आप जाइए। तो मकसद कहने का ये है कि भारत को सम्मान मिला है। मैं शैलेश जी ये बताना चाह रहा हूं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आप पहले हमारा पासपोर्ट की जो वैल्यू थी और आज के वक्त में जो हमारे पासपोर्ट की वैल्यू है, बहुत है। जब हम भारत से बाहर जाते हैं, इसका हमें अंदाजा बाहर जाने के बाद होता है, लोग हमें किस तरह से मोहब्बत से हमको मिलते हैं। आर यू इंडियन, हमको गले लगाते हैं, हक करते हैं। तो मकसद कहने का ये, हमारा जो रेस्पेक्ट है वो हमारे देश से हमारा रेस्पेक्ट बना, मेरे रिलीजन से मेरा रेस्पेक्ट नहीं बना। मेरा धर्म कोई भी है, लेकिन वी आर इंडियन, मेरा इंडिया की वजह से मेरा सम्मान बढ़ता है। तो इसलिए जब भी आज जिस तरह से हमारा देश विकास की ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, आने वाला समय आप लोगों का है। हमें इस डेवलपमेंट में, भारत के इस विकास में आप लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान है। आज डिजिटल दुनिया का दौर है, हम लोग तो मैनुअल दुनिया के लोग हैं। हमने अपनी जिंदगी में तो हम लोग तो मैनुअल लोग थे, फोन भी ये तो सब अब शुरू हुए हैं, लेकिन आप लोग तो डिजिटल दुनिया के लोग हैं। तो आप टेक्नोलॉजी में आगे जाएं। वैसे तो टेक्नोलॉजी में, आईटी सेक्टर में, प्रोफेशनल हमारे डॉक्टर्स में पूरी दुनिया के अंदर हम, भारत का बहुत बड़ा नाम है। बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट आईटी इंजीनियर्स इंडियन है। तो इसलिए भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। भारत की तरक्की में हम सब मिलकर अपना योगदान दें, सब मिलकर, अलग अलग आप अपना योगदान दें, मैं अपना योगदान दूं, सारे मिलकर अगर हम लोग करेंगे तो आने वाले वक्त में मैं यकीन से कह सकता हूं, स्वामी विवेकानंद की वो बात कि जब उन्होंने कहा था कि भारत विश्व गुरु है और था, है और रहेगा, तो मुझे स्वामी विवेकानंद जी की वो बात हमेशा याद करता हूं कि हम लोग, भारत जो है हमेशा से विश्व गुरु है और हमेशा रहेगा, और हम सब मिलकर इसी तरह से एक दूसरे से प्यार करें। बस मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी एक नसीहत भी यही है कि हम एक दूसरे से नफरत ना करें, एक दूसरे से हमें प्यार करना है। हम प्यार से सब कुछ जीत सकते हैं। जो हमारे दुश्मन लोग हैं, जो दुश्मन हमारे नेबर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ सकते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे अंदर डिफरेंसेस पैदा हो जाएं, वो चाहते हैं कि हमारा नुकसान हो जाए। तो इसीलिए हमें लड़ना नहीं है, हमें प्यार करना है। हमारा एक ही मकसद है, क्योंकि हमारा जो यूथ है उसको धर्म से ऊपर उठकर वो अपने कैरियर की फिक्र करता है। आज हमारा यूथ कैरियर अपना बना रहा है। आज हमारा यूथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो मैं अपने नौजवानों से जब भी मिलता हूं, पूछता हूं, तो वो सभी, हर नौजवान इस समय अपने करियर की बात करता है। तो उसके लिए करियर इंपॉर्टेंट है, लेकिन धर्म भी इंपॉर्टेंट है, करियर भी इंपॉर्टेंट है, देश भी इंपॉर्टेंट है। सबको बैलेंस लेकर अगर हम चलेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि अब आपके पास आना है समय, आपको संभालना है देश, तो मुझे लगता है कि आप जैसे लोग इकट्ठे होकर इस देश के सब भागीदारी बनेंगे और सब मिलकर इस देश को विश्व गुरु बनाने में और तरक्की करने में
सब मिलकर सहयोग करेंगे। और इसके लिए मैं आप सबको, मेरी दुआएं भी हैं, आशीर्वाद भी है। तो मैं सभी से पुनः आपका दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इमाम जी, आपको सुन के मुझे तो पर्सनली हमेशा आनंद ही आता है जब भी मैं आपके सानिध्य में मुझे रहने का अवसर मिला है। तो आपकी बातें और आपके थॉट्स जो रहते हैं वो इतने इंस्पायरिंग रहते हैं, मुझे सुन के बड़ा ही आनंद आता है। और मुझे विश्वास है आज हमारे जितने भी और भी दर्शक जुड़ रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। मुझे ऐसा अभी अपडेट आया कि लगभग हमारी इस वीडियो को लगभग अभी तक 800 लोग मतलब लाइव चलते हुए देख चुके हैं, और लगभग 70-80 लोगों ने अपने फेसबुक में भी शेयर किया है। तो ये आपकी बातों को एम्पलीफाई करने का, और ये आपकी बात इतने जगह तक पहुंचे, हमें विश्वास है कि हमें भी बहुत आनंद आ रहा है। आपने बहुत सारी चीजें कही है, ये भारतीयता ही एक धर्म है, या फिर किस तरह भारत को मजबूत करना ही हमारा एक धर्म होना चाहिए। और मुझे लगता है जिस पैशन और जिस तरह आपने ये बात को रखा है, ये आज सब हमारे युवाओं, भाइयों और बहनों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। और जिस तरह आपने अपना अनुभव बताया, किस तरह भारत का एक इंटरनेशनल इमेज बिल्डिंग इतना अच्छा हो रहा है, तो मुझे विश्वास है कि हम जैसे युवाओं के लिए और भी बहुत आसान हो जाता है ये मालूम रहते हुए कि अगर मैं देश से अगर कहीं बाहर जाऊंगा विदेश में, तो हमारे देश के कारण हमें ख्याति मिलेगी, हमें सम्मान मिलेगा, हमें जगह मिलेगा। तो आपके इस एक्सपीरियंस से बहुत सारे और युवाओं को मुझे लगता है वो प्रेरणा मिल रही है। और ऐसे ही आपने बहुत सारी चीजें को कही, प्रेम जो है, प्रेम से किसी भी चीज को जीता जा सकता है। और मुझे लगता है जिस तरह आपने ये बताया है, मतलब प्रेम को जो हमारे युवा भाई और बहन है उसको अलग अंदाज से ना ले, पर प्रेम का इनका जो कहने का जो अंदाज है उनको हम समझते हुए और उसको माने। इस तरह लव इज द ओनली वे टू टैकल ऑल द प्रॉब्लम्स। एंड आई थिंक जो यूएन में भी जो 17 गोल्स होते हैं उसमें क्या खूबी इमाम जी ने बताया है, गोल नंबर 16 में भी यही बताया गया है कि किस तरह पीस और हम अमन चैन ये सब की बातें तभी कर सकते हैं जब हमें प्रेम हो, हमें एक सब में एकता हो। इमाम जी, ऐसे हमें बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस फेसबुक लाइव में आ रहे हैं, और मैं कुछ मैं आपके साथ सामने रखूं। और जरूर। इसमें से एक बहुत ही बेसिक, या मुझे लगता है क्लास 11-12 के किसी एक बच्चे ने लिखा है कि ऐसे लिखते हुए, इमाम जी नमस्ते, आप एक इमाम हैं, तो ये इमाम और मुल्ला में अंतर क्या है? क्या ये दो अलग डिफरेंट सेक्ट होते हैं, ये क्या है ये? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहली बात ये है, हमको समझना चाहिए कि जो मुल्ला होता है, मौलवी होता है, एग्जैक्ट वर्ड होता है मौलवी, मौलाना, जो जिसको मौला का इल्म, जिसके पास इल्म होता है उसको मौलवी कहते हैं। मौलाना जो होता है वो एक ग्रेजुएट होता है इस्लामिक स्टडीज का। और उसके बाद एक मुफ्ती होता है जो पीएचडी किया हुआ है इस्लामिक स्टडीज के अंदर। इसी तरह से इमाम होता है। इमाम जो होता है वो लीड कराता है प्रेयर्स को। जिस तरह से अब आपको आसानी से समझ में आएगा कि जो मंदिर के अंदर जो पुजारी होता है, जो पूजा कराता है, जो मंत्र कराता है, पूजा कराएगा, ही इज द इमाम। पुजारी जो है वो इमाम है। तो इमाम जो है वो लीड, बेसिकली इमाम के माने लीडर के होते हैं, और लीड करता है वो जो लोग पीछे उसके नमाज पढ़ते हैं। तो इमाम मस्जिद का इमाम होता है, पुजारी होता है, उसको इमाम कहते हैं। मौलाना, मुल्ला, मौलवी जो कि जिसने ग्रेजुएट होता है इस्लामिक स्टडीज में। बहुत ही खूब। मुझे लगता है इससे हमारे युवा भाई के वो प्रश्न का हुआ होगा। और मैं और भी हमारे सब दर्शकों से, व्यूअर्स से कहना चाहूंगा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस या कोई भी आपके प्रश्न हो, आप फेसबुक लाइव में हमारे कमेंट सेक्शन में डाल दें, और हम टीम उसे मॉडरेट करके हम इमाम जी के सामने प्रस्तुत करेंगे। एक बहुत ही अच्छा एक सवाल आया है इमाम जी, वो कह रहे हैं कि आपने बहुत बार आपने ये कहा था कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर तलाक, समाज को, सोसाइटी को नीड्स टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड्स ऑफ निकाह। सो कुछ लोग इस्लाम में भी ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट थे, और जैसे आप स्वयं आपकी इस बात से लगता है कि आप इसके प्रो हैं, तो ये क्या है? मतलब कैसे ये ओपिनियन डिफरेंस कैसे रहता है, और ये किस कारण से ऐसा रहता है? इमाम जी प्लीज आप इसमें थोड़ा सा। आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं समझता हूं कि अगर हमारी ऑडियंस देख रही है और समझ रही है,
तो ये आपने निकाह और तलाक की बात करी है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि तलाक तो नेगेटिव वर्ड है, तलाक की बात नहीं करनी चाहिए, निकाह की बात करनी चाहिए। निकाह के माने जोड़ने के हैं, आपस में जुड़ने के हैं। तो हम तो लोग तो जोड़ने की बात, निकाह की बात कर सकते हैं। हम और आप निकाह, आपस में हमारा निकाह का मतलब जुड़ना है, पॉजिटिव है। तलाक नेगेटिव है। लेकिन वेरी आपके लिए एक बड़ा, आपके दर्शकों के लिए एक बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए क्या होता है कि इस्लाम के अंदर जो शादी होती है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, बंधन नहीं होता। हमारे हिंदू रीति रिवाज में बंधन होता है जन्म और जन्म का, लेकिन इस्लाम के अंदर जो शादी होती है वो एक आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आपका दोनों का निकाह हो गया, आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, खुशी से आप दोनों को रहना है। अगर बिलफर्ज अगर लड़का लड़की शादी होके आए और शादी होने के बाद लड़के में हो सकता है तो कमी हो सकती है, अगर कोई भी कमी हो सकती है, उसको वो पसंद नहीं है, तो लड़की को उतना ही अधिकार है जितना लड़के को तलाक देने का है, तो लड़की को खुला लेने का अधिकार उतना ही है, बराबर इक्वल। तो वो लड़की अपने हस्बैंड को बोलेगी कि वो रिटर्न में देगी कि भाई मुझे आपसे खुला चाहिए। खुला क्या माने? आजादी के। तो मुझे आपसे आजादी चाहिए, तो उनको देनी पड़ेगी लड़के को। और अगर लड़का लड़का लड़की के साथ पसंद नहीं है, लड़की में कोई प्रॉब्लम है, तो वो तलाक ले लेगा। तो ये बेसिकली दोनों के लिए इक्वल राइट्स रखे गए हैं। इसको एक को तलाक नहीं, तलाक लड़के के लिए शब्द आता है और खुला लड़कियों के लिए आता है। किसी लड़की को नहीं रहना किसी लड़के के साथ, तो वो खुला लेने का उसको पूरा अधिकार है, और इस तरह से लड़के को भी अधिकार है तलाक लेने का। तो ये बेसिकली दो चीजें हैं जिसको समझने की जरूरत है, क्योंकि इसीलिए हमने अभी बार बार सबको बोला है कि जो निकाहनामा होता है उसके अंदर हम एक क्लॉज हमने डलवाना शुरू कर दिया है आर्बिट्रेशन का। जब ये कॉन्ट्रैक्ट है तो एक आर्बिट्रेशन होनी चाहिए कि अगर आपकी कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, तो आप आर्बिट्रेटर मुक्त करें अपने माँ बाप को, वटेवर आपके जो भी लोग हैं, और उनसे फैसला कराइए कि अगर मैं गलत हूं या आप गलत हैं तो उसका फैसला हो। तो आर्बिट्रेटर अगर इस मसले को करेगा तो मुझे लगता है कि तलाक होगा ही नहीं, या होगा तो पीसफुली होगा। तो इस तरह की चीजें हैं जिसे समझने की जरूरत है। मतलब आपने जिस तरह बहुत सिंपली और आपने जिस तरह विस्तार से सारी चीजों को बताया है, मुझे लगता है कि इससे हमें भी बहुत सारी चीजों को समझ में आएगा कि किस तरह इसको देखा जाता है, और क्लैरिटी से समझ में आएगा जब स्वयं चीफ इमाम इस विषय पे बात कर रहे हैं। इमाम जी, एक ऐसा बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसा लिख रहे हैं, वेरी गुड इनिशिएटिव, सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। ये ऐसे भी कुछ कमेंट्स आपके लिए आ रहे हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल जो अभी मुझे लग रहा है कि इमाम जी, आप यू आर वेरी वोकल अबाउट मेन स्ट्रीम एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स। हाउ डू यू थिंक द चेंज कैन बी ब्रॉट एट द ग्रास रूट लेवल? बहुत जरूरत है। हमारे कुरान के अंदर जो हमारा ग्रंथ है उसमें सबसे पहले यही आया, इक़रा बिस्मि रब्बिक, पढ़ने के लिए हुक्म आया। और आज अनफॉर्चुनेट हम लोग सबसे पीछे रह गए। तो हमने इसको कहा है कि हमको हमको रिलीजियस के साथ साथ हमको मॉडर्न एजुकेशन भी चाहिए। हम एक रिफॉर्म लाने वाले हैं इस भारत के अंदर। भारत के अंदर 7.5 लाख मदरसे हैं। अब हमने एक प्लान किया है कि मदरसों के अंदर हम मॉडर्न एजुकेशन को भी लाएंगे। तो मॉडर्न एजुकेशन हमारे बीच में, जब हमारे रिलीजन के साथ मॉडर्न एजुकेशन दोनों जुड़ जाएंगे, तो भारत के डेवलपमेंट में हमारा एक बहुत बड़ा योगदान होगा। हम चाहते हैं कि वो भी यूथ हैं। अभी हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, गुरुकुल और मदरसा एक्सचेंज प्रोग्राम। हम स्वामी चिदानंद जी के यहाँ परमार्थ निकेतन आश्रम है, बहुत वेरी फेमस आश्रम इन ऋषिकेश। स्वामी चिदानंद सरस्वती वो मेरे बड़े भाई हैं, उनका जन्मदिन था। तो मैंने सोचा कि स्वामी जी को कैसे हम उनको सेलिब्रेट करें उनके जन्मदिन पर। आपको मालूम है कि उनकी आरती वर्ल्ड वाइड सबसे फेमस है पूरी दुनिया के अंदर, गंगा आरती। तो स्वामी जी के लिए हमने दारुल उलूम देवबंद से 100 यूथ को लिया। 100 यूथ मदरसे के दारुल उलूम देवबंद के बच्चे लिए। उन बच्चों को लेकर हम चल दिए ऋषिकेश। लेकिन हमने उन बच्चों को नहीं बताया हम तुमको कहाँ लेके जा रहे हैं। उनके टीचर्स को नहीं बताया, उनको साथ रखा कि हमने कहा एक तुम्हारे लिए सरप्राइज होगा, हम आप लोगों को एक सरप्राइज देना चाहते हैं, तुम मेरे साथ चलो, तुम पूछो नहीं कि हम कहाँ जाएंगे।
तो मैं उन सबको लेकर शैलेश जी वहां पर चला गया ऋषिकेश। रास्ते में हम जब जा रहे थे, जब निकले तो हरिद्वार आ गया। तो हरिद्वार पे सारे, उस वक्त कांवड़ का जमाना चल रहा था, तो सारे बच्चे आपस में डिस्कस करने लगे, ये इमाम जी हमको कहाँ लेके जा रहे, यहाँ तो सारे पंडित ही पंडित नजर आ रहे, वो कभी हरिद्वार गए नहीं थे। अब उसके बाद अब हम उनको लेके, जैसे हम जब पहाड़ों में जाने लगे तो कहने लगे कि बड़ा मजा आ रहा है, तो बड़ी अच्छी जगह ले जा रहे हैं इमाम जी हमको। उसके बाद हम वहां ऋषिकेश आश्रम में हमारी गाड़ियां लग गई, उन सारे बच्चों को हमने ले जाके वहां पर आश्रम में लेके गए, और उसके बाद हम स्वामी जी के साथ बैठे। तो स्वामी जी ने और हम लोगों ने, आप यकीन माने कि स्वामी जी ने 100 बच्चे अपने गुरुकुल के बुला लिए, उन्हीं के एज के, और 100 बच्चे हमारे मदरसे के सेम एज के। हम लोगों ने 3 दिन हम आश्रम में रहे। आप आप यकीन माने शैलेश, मैं जितने दर्शक है, मुझे, मैं बता नहीं सकता मेरा वो एक्सपीरियंस। उन बच्चों को एक एक को हमने, एक गुरुकुल का बच्चा, एक मदरसे का बच्चा, दोनों को हमने एक साथ मिला दिया। वो अपने रूम में ले जाके उसने अपने अपने साथ सुलाया। 3 दिन तक उनको वेजिटेरियन खाना खिलाया, और 3 दिन उनके टीचर्स और हमारे गुरुकुल के जो टीचर्स थे उनको मिलाया। स्वामी जी और हम अलग रहे, इन सबको मिलाया 3 दिन। और 3 दिन हमने वहां प्रोग्राम्स करे। ठंड का थोड़ा मौसम भी हो गया था, तो हम लोग रात को वहां आग जला के बैठते थे, डिस्कशन करते थे 3 दिन। आप 3 दिन में वहां पर बच्चों ने, कभी जिसने कभी आश्रम नहीं देखा, जिसने कोई पंडित नहीं देखा, उसने कोई गुरुकुल नहीं देखा, उनकी आपस में दोस्ती हुई। और आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो बात बताना चाह रहा हूं कि 3 दिन बाद शैलेश, जब हम बसों में बैठने लगे जाने के लिए वापस, एक एक बच्चा गुरुकुल का, एक एक बच्चा मदरसे का आंखों से आंसू से रो रहा था, जैसे उसका भाई जुदा हो रहा है। सबने अपने नंबर एक्सचेंज कर लिए टेलीफोन्स के, और वो आपस में इतने दोस्त हो गए आज, क्योंकि आने वाले वक्त वो गुरुकुल का बच्चा पुजारी बनेगा, ये मदरसे का बच्चा इमाम बनेगा। इनकी दोस्ती हो गई, अब ये दोस्ती कभी भूल नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमने हमेशा से ये बात हमने हमेशा से, ये मेरे लिए इतना एक्सपीरियंस था यूथ का, कि मैंने इमाम और पुजारी दोनों मिलके, और ये गुरुकुल और मदरसे के बच्चों ने मिलकर इतना बड़ा काम कर दिया। और हम आज भी, क्योंकि अब मेरे मदरसे के बच्चे और मदरसे वाले ये कहते हैं कि आपने वादा किया था लास्ट ईयर कि जी ये हमारे दोस्त, हम इन्होंने हमारी खिदमत करी है, अब हम इनको देवबंद लेके जाएंगे अपने मदरसे में, आप उनको, मेरे दोस्तों को लेके आइए गुरुकुल वालों को, और हम उनको 3 दिन यहाँ रखेंगे अपने पास, अपने साथ उनकी सेवा करेंगे, उनके लिए हम बेहतरीन प्योर शुद्ध वेज खाना खिलवाएंगे। मतलब इतने एक्साइटेड हैं कि वो कब लेके आना है। तो ये कितनी अच्छी बात है जब हम एक्सचेंज प्रोग्राम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि कितना आपस में मोहब्बत, हम पीस की बात कर रहे हैं, हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं, प्यार की जो बात हमने करी थी, वो यही तो प्यार है। हमारे पास क्या है, यही तो एक प्यार है देने के लिए। अब उन दोनों बच्चों में, मदरसे के बच्चे और गुरुकुल के बच्चे में जो एक प्यार हुआ है, अनबिलीवेबल। मैं आपको उसके फोटोज भेजूंगा, सब कुछ वीडियोस आपके नेट पे भेजूंगा आपको, आप उनको एक बार आप देखेंगे, और ये मेरे जितने लोग जुड़े हैं उनको एक बार जरूर भेजिएगा जो मैंने बात कही है। तो मुझे लगता है कि आज इसी की आवश्यकता है, इसी की जरूरत है, इसी को हमें निभाना है, इसी को लेके आगे चलना है, यही हमारा मकसद है। इमाम जी, ये सुन के मुझे मन ही नहीं कर रहा था कि आपको मतलब मैं चाह था कि बस आप कहते रहें, अपने अनुभव को हम सबके साथ साझा करते रहे, और ऐसे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, क्योंकि मुझे लगता है कि हमने सुना है ऑस्ट्रेलिया इंडिया यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, हमने सुना है यूएस इंडिया यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, पर हमने ये पुजारी मदरसा या फिर गुरु मदरसा मैं कह रहा हूँ, या पुजारी इमाम एक्सचेंज प्रोग्राम हमने ये पहली बार सुना है। और उसके बाद जिस तरह का अनुभव हुआ है, मुझे लगता है कि सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह का हम कह रहे हैं प्रेम, हम मोहब्बत की बात कर रहे हैं, वो तभी हो सकता है कि जब दोनों जन मिले, जब दोनों साथ रहें। और 3 दिन साथ रहने का ये जो अनुभव आप सबने हमसे शेयर किया है, मुझे लगता है हम सब दर्शकों के लिए, और खास करके मेरे लिए भी एक इंस्पिरेशन है। और ये अगर हम फ्यूचर में, अगर यूथ ऑफ इंडिया फाउंडेशन भी किसी तरह इस पूरे आपके एक्सचेंज प्रोग्राम में आगे कहीं पर भी सहयोग कर सके, मुझे लगता है हम हमेशा, और आपके हर एक कार्यक्रम में ऐसा सहयोग या स्ट्रेंथन करने के लिए हम रहना चाहेंगे। जरूर जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। इमाम जी, आप
आपने एक बहुत ही अच्छी बीच में आपने एक बात कही, और ये बहुत ही अच्छा हमें लगा। एक मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं आपके साथ एक बार बैठा हुआ था, तब आपने किस तरह change.org, जहाँ पर एक पेटिशन हुआ था, आफरीन शहकील नाम की एक हमारी बहन ने किया था कि कोई मस्जिद में शायद अब्यूज हो रहा है और डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, और आपने खाली वो पिटीशन के माध्यम से आप तक वो पहुंचा, और आपने उसके लिए बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट भी रिलीज किया, और उसके ऊपर आपने एक्शन भी लिया। तो प्लीज आप हम सबके साथ वो एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए। शैलेश जी, दरअसल क्या है कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो हमारे भारत के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ये प्रॉब्लम है। हर घर की प्रॉब्लम है ये, कि किसी जाति या किसी पंथ से मुराद नहीं है। ये डोमेस्टिक वायलेंस हर घर में होता है। तो इसकी हमें बुनियादी बात, जब हमारे पास शिकायत आई तो उसने बहुत डर डर कर हमको एक पिटीशन उनको बताया, change.org को। उन्होंने इसमें पिटीशन डाली, पिटीशन ने हमको कहा, तो हमने ये स्टैंड लिया। हमने कहा कि भाई ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है ना, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि हमें एक बात बताइए, मैं शैलेश जी, आपके घर में भी बहनें हैं, आपके घर में भी माँ है, आपके घर में भी जिनकी वाइफ है वो भी हैं। हमारे हर रिश्ते होते हैं, माँ का रुतबा माँ का होता है, बहन का रुतबा बहन का है, और वाइफ का, पत्नी का रुतबा वो भी होता है। हमारे लिए सब सम्मान है बराबर के। एक लड़की आपको मालूम है कि एक लड़की जो जिसके माँ बाप ने उसको पढ़ाया लिखाया और उसको ग्रेजुएट किया, उसके ऊपर पैसा लगाया, उसे जवान किया, उसके बाद उस बच्ची को ये पता नहीं कि मेरी शादी होकर जहां जा रही हूं वो घर कैसा होगा, वो आदमी कैसा होगा, मेरा रहन सहन कैसा होगा। एक नए एटमॉस्फेयर में जाकर वो बच्ची चली जाती है, और जाकर निकाह हुआ या मंडप में उसका फेरे हो गए, अब वो उसकी हो जाती है, अब वो चली जाती है। वो उस घर की चौकीदार भी होती है, वो उस घर की खाना बनाने वाली भी होती है, वो उस घर की मालकिन भी ऑफकोर्स होती है। लेकिन तुमको तुमको सुलाकर वो खुद सोती है, तुम्हें खिलाकर वो खुद खाती है, तुम्हारी चौकीदारी करती है, तुम्हारे बच्चों को पालती है, तुम्हारी खिदमत करती है। उसके बाद तुम उसको अगर सम्मान नहीं दोगे, उसे प्यार नहीं दोगे, तो ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है। हमने अपनी बच्चियों को, बहनों को, सबको हमें सम्मान देना होगा। हमें जब हम सम्मान देने लगेंगे, प्यार देने लगेंगे, तो डोमेस्टिक वायलेंस होगा ही नहीं। जो सबसे बड़ा डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर हमारे समाज में, भारतीय समाज में खास तौर पर, ये जो दहेज का जो प्रथा है ना, ये दहेज प्रथा खत्म होनी चाहिए। कि मेरी आवाज है, नौजवान बच्चे अगर मुझसे सुन रहे हैं, तो बेटा याद रखो, आज मैं आपसे बस यही गुजारिश करूंगा, जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। जो बेटियां होती है वो लक्ष्मी होती हैं, वो हमारे घर में आके सब कुछ, वही तो सब कुछ आ जाता है। हमें बाकी दहेज की क्या जरूरत है। हम दहेज में लड़की भी ले रहे हैं, गाड़ी भी ले रहे हैं, उस सामान भी ले रहे हैं, और उसको तकलीफ भी दे रहे हैं। ये तो नहीं चलेगा। ये दहेज प्रथा हमारे हमारे यहाँ से बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। हम इसको, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। क्योंकि आप नौजवान बच्चे हो, आप लोगों की आने वाली शादियां होने वाली हैं। आप अपने माँ बाप को बोलिएगा कि हम बिल्कुल दहेज नहीं लेंगे, नहीं देंगे। हम एक ऐसा अपना माहौल बनाएंगे जिससे कि सबका भला हो जाए। बहुत से गरीब औरतें हों, गरीब फैमिली होती है जिनके पास पैसे नहीं होते, उनकी वजह से उन बच्चियों की शादी नहीं हो पाती है, या उनकी शादी हो जाती है, उनको दहेज कम दिया तो डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हो जाता है। तो इसकी आवाज हमको मिलकर उठानी है। अपने देश से, अपने समाज से दहेज प्रथा को हमेशा के लिए खत्म करना है। वाह इमाम जी, मतलब ये सुन के मुझे लग रहा है इतना आपने जिस तरह ये ऐलान किया है, आज पूरा यूथ ऑफ इंडिया मुझे लगता है दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए सुन रहा है। और मुझे विश्वास है कि हम सब आपके इस ऐलान और इस मुहिम पे साथ खड़े रहे, और ना ही खाली खड़े रहे पर इसको हम करके दिखाने का ऐसा दृढ़ संकल्प आज आपकी आवाज से हम ले रहे हैं। एक इमाम जी, बहुत सारे हमारे लोग जुड़ रहे हैं, अभिनव जैन, अंकित, सारिया, एम के शर्मा जी, प्रभात जा, पंकज जी, हमारे बड़े भाई दीपक बंसल जी, और ऐसे तमाम लोग हम सबके साथ आज जुड़ रहे हैं। कुछ लोग इंटरनेशनली भी जुड़ रहे हैं, श्रीलंका से, भूटान से, लक्षिता, चेंचुंग,
और अजय भैया भी जो हम सबके साथ जुड़ रहे हैं, और इतने लोग जुड़ रहे हैं। और एक सवाल बहुत बेहतरीन मतलब मुझे जो आ रहा है हमारे साथ शेयर हो रहा है। इमाम जी आपने कहा, इमाम सर, यू सेड इन योर लास्ट क्वेश्चन कि हाउ पीपल स्टूडेंट्स ऑफ मदरसा एट वेजिटेरियन फूड। तो और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बीफ खाना तो एक कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में, ये कम्युनिटी में एक स्टेपल फूड की तरह है। और आपने भी 2017 में ये बैन काउ स्लॉटर को लेके एक बहुत बड़ा ऐलान किया था, और आपने उनको नेशनल एनिमल घोषित करने का प्रस्ताव भी रखा था। इसके ऊपर आपका क्या राय है, और ये थॉट्स के डिफरेंसेस कैसे होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में भी? प्लीज आप इसके ऊपर हमें कुछ बताएं। देखिए, आपको ये समझना होगा कि हर मौसम का एक मिजाज होता है और हर जगह का एक रहन सहन का तरीका होता है। मिसाल के तौर पे हम भारत में रहते हैं। भारत एक वेजिटेरियन देश है। यहाँ पर मेजोरिटी वेजिटेरियंस की है। अगर यहाँ पर हम एक बात कहते हैं कि देखिए, आपको ये समझना होगा कि एक तो आपने एक बीफ कहा। बीफ का माने हमारे यहाँ पर आमतौर पे जो लोग जो जो बफलो का जो मीट होता है उसको उसको बीफ का कहते हैं। काउ स्लॉटरिंग के लिए तो बिल्कुल बैन है, और काउ हम यहाँ पर हमने बिल्कुल पाबंदी से बंद भी कर रखा है कई सालों से। मुझे नहीं लगता कि हमारे इन क्षेत्रों में कहीं पर भी अभी काउ स्लॉटरिंग होती हो या उनको तो मुझे नहीं लगता है। लेकिन बीफ माने बफलो का होता है। बफलो का मीट लोग खाते हैं, क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट भी होता है, लोग करते हैं। लेकिन गाय का मीट हमारे यहाँ नहीं खाया जाता है। बीफ और गाय दोनों में फर्क है, इसको समझने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि हमें इसको समझना है कि हमें हमारे देश के अंदर गाय एक ऐसा पशु है जिसको हमारे हिंदू भाई, बड़ी मेजोरिटी के लोग, हमारे बड़े भाई लोग उसकी पूजा करते हैं, उनकी उसमें आस्था है। तो हमें उनका सम्मान करना है। उस वजह से मैंने ये बात कही थी कि हमें भारत के अंदर, ये मेरा मिशन है कि हम गाय को नहीं कटने देंगे, नंबर 1। क्योंकि गाय जो है वो एक ऐसा पशु है जो सिर्फ देता ही देता है, वो आपसे कुछ लेता नहीं है, वो सिर्फ आपको देता है। आपको ये बता दूं कि गाय का जो जो हमारे प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने क्या कहा, तिब्बे नबी किताब है, उसमें आपने फरमाया, प्रॉफिट मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिब्बे नबी में ये फरमाया कि गाय का घी दवा है, गाय का दूध शिफा है, और गाय का मीट बीमारी है। तो इसलिए जब हमारे प्रॉफिट ने हमको कह दिया, तो हमें क्या जरूरत है? हमारे पास बकरा है, अगर जिसको खाना है, मुर्गा है या जिसे खाना है, सब्जियां हमारे पास बहुत हैं, दाल हमारे पास हमारे देश में बहुत है, क्यों नहीं खा सकते हम? हमारे जीवन ही तो जीना है। क्या उसके बगैर हमारा जीवन नहीं गुजर सकता? क्या हम उसके बगैर रह नहीं सकते? अच्छा घी खाइए, अच्छा दूध पीजिए, अच्छी दालें खाइए, अच्छी सब्जियां खाइए, खूब अच्छा अच्छा आप रहिए, स्वस्थ रहिए, कौन दिक्कत है? अभी एक बुजुर्ग मिले मुझे, अभी वहां मैं कुरुक्षेत्र गया था। कुरुक्षेत्र में 100 ईयर्स उनकी क्रॉस कर गए हैं, एक ब्रह्मचारी थे। वो सिर्फ जो है दूध और दही पर और थोड़ी चीजों पे इस तरह पे रहकर अपने दूध गाय का दूध और गाय का पनीर और गाय के ही 100 साल क्रॉस कर गए, और मुझसे ज्यादा हेल्थी थे और मुझसे ज्यादा एक्टिव थे। तो ये कोई जरूरी थोड़ी है कि आप मीट खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, ऐसा नहीं है। जिस तरह आपने इस विषय को रखा, और मुझे हमें प्रॉफिट जी के भी शब्दों में जिस तरह आपने बताया, मुझे लगता है ये पहली बार होगा कि आज इतने सारे युवा हम सबके साथ जो जुड़ रहे हैं, एक पर्सपेक्टिव मिल रहा है। और बीफ का रियल अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, वो एक बफेलो का मीट होता है, ना कि काऊ का। एग्जैक्टली। वो आपने जिस तरह हम सबके साथ शेयर किया, मुझे लगता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। प्रभात जी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुजैन एविलिन, अंकुर भारद्वाज, मोहित जी, संजीव थकरेला, कितने ही लोग देश विदेश हम सबके साथ आज जुड़ रहे हैं, इन सब सारे विषयों को समझ पाएंगे और बारीकी से समझ पाएंगे जब हमारे साथ खुद स्वयं चीफ इमाम डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलाइसी जी बात कर रहे हैं। ऐसे प्रश्न की सिलसिले तो इमाम जी चलते जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपके पास कितना समय है, और प्रश्न तो बहुत, मतलब अभी भी 3-4 ऐसे प्रश्न है जो हम। लेकिन अगर 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 उनकी, मेरे नौजवानों की, चूंकि मेरे बच्चे हैं सब, ये तो सब मेरे बच्चे हैं, अगर एक
मेरे बच्चे अब मुझसे सवाल कर रहे हैं, अपने पिता से सवाल कर रहे हैं, अपने अपने गुरु से सवाल कर रहे हैं, तो गुरु क्या ये इनकार कैसे कर सकेगा? ये हमारे देश की संस्कार, हमारे देश की संस्कृति ये नहीं है। गुरुओं का सम्मान है, गुरु अपने शिष्यों का सम्मान करते हैं। तो ये हमेशा की मैं हमेशा कोई बहुत सवाल होंगे तो जरूर जवाब दे देंगे। इमाम जी, एक जो प्रश्न था मुझे लगता है आपने उसका आंसर कर ही दिया है, कि किस तरह व्हाट इज द स्टैंड ऑफ इंडिया राइजिंग ग्लोबली, और क्या हम इम्प्रूव कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आपने इसके बारे में बताया भी। अगर आप कुछ इसमें और एक दो शब्द कहना चाहें तो प्लीज। मैं तो बस भारत के लिए यही कहना चाहता हूँ, जो मेरे नौजवान बच्चे हैं, हमारे नौजवान बच्चों को हमें टेक्नोलॉजी के अंदर ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। हमें हथियार खरीदने के लिए हेलीकॉप्टर, जहाज, हमें दूसरे देशों को जाना पड़ता है। हमारे नौजवानों को हमारी कैपेसिटी है, हमारी कैपेबिलिटी है, हमारे पास अच्छा दिमाग है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास सब कुछ है। तो अगर हम सब मिलकर यहाँ अपने, हमें जो चीज, कोई भी चीज है, हम चाइना हो या अमेरिका हो, वटेवर, मैं किसी कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें किसी से लेना ना पड़े, हम खुद ही करें। एक जापान एक तो बहुत बड़ा एग्जांपल है। जापान आज हर चीज अपनी बनाता है, एक छोटा सा देश। आज भारत तो बहुत बड़ा देश है, आज भारत के अच्छा दिमाग है हमारे पास, हम क्यों नहीं कर सकते? तो मैं नौजवानों को ये कहना चाहता हूं कि सब मिलकर आज हमें इस बात की फिक्र, अपना कैरियर मत बनाइए, अपना अपना तो सभी जीते हैं, सभी करते हैं। देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है, देश के लिए करना है। अगर ये भावना हमारे अंदर आएगी तो हमारा देश किसी का मोहताज नहीं होगा। हमारे देश में हर चीज यही बनेगी। हम सब मिलकर, आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अभी 15 अगस्त के दिन 74वां हमारा सेलिब्रेशन था इंडिपेंडेंस डे का, उस वक्त उन्होंने ऐलान किया, और उन्होंने जिस तरह की बातें हमारे नौजवानों के लिए, हमारे सब के लिए करी, तो हमें अपने प्रधानमंत्री को सहयोग करना है, उनको सपोर्ट करना है और भारत को मजबूत करना है। उनके साथ मिलकर सब लेके चलेंगे तो एक दिन वो दूर नहीं कि हमारा भारत पूरी दुनिया के अंदर एक ताकतवर मुल्क बनके अभी भी है और मजबूत बनके होगा। ऐसा आशीर्वाद भी है, ऐसी दुआएं मेरा है। हम सब मिलकर एक साथ रहें, एक साथ काम करें, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। सही कहा आपने इमाम जी। आपने जिस तरह विषय रखी, किस तरह भारत मजबूत था, है और रहेगा, और आईटी सेक्टर में जिस तरह आज के डेट में हमारे प्रधानमंत्री जी भी पुश कर रहे हैं, और हमारा भारत भी पूरे सिलिकॉन वैली में जिस तरह जाना जाता है, मुझे लगता है आपकी इस बातों से हम युवाओं को और भी प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद अनूप भैया भी जो आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इमाम जी, एक बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन, या एक बहुत ही क्रूशियल सवाल जो आज सबके मन में ये आ रहा है कि इमाम जी, आपका स्टैंड क्या है एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म को लेके, और हम उसको कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? क्योंकि बार बार हम देखते हैं कि टेररिज्म एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, कौम या रिलीजियस आइडियोलॉजी पे ही टारगेट करता है, पर जिस तरह आप बातें कर रहे हैं, तो क्या ये क्यों ऐसा क्यों ऐसा एक कंफ्यूजन सा स्पेस बना हुआ है? और आपका क्या मानना है एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, और उसको हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सकें, और क्यों ये बार बार खाली एक ही कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है? आपका क्या इसमें मानना है? ये बहुत अच्छा सवाल मेरे किन्होंने किया था, सवाल क्या नाम है उनका? एनीवे, आकाश जी ने किया। जी, आकाश जी, बहुत अच्छा सवाल, बहुत बहुत अच्छा उन्होंने सवाल किया है। और ये देखिए, आपको ये समझना होगा कि जो टेररिस्ट है या टेररिज्म है, ये बाकायदा ये एक शैतानियत का नाम है। ये धर्म के जो लोग होंगे, जो किसी धर्म को मानने वाले होंगे, वो टेररिस्ट हो ही नहीं सकते। ये तो शैतान का काम है, इंसान का काम ही नहीं है। इंसान का काम तो बचाने का होता है, शैतान का काम मारने का होता है। तो ये जितने टेररिस्ट हैं, दे आर शैतान। तो मैं इनको शैतानों की संज्ञा इसलिए देता हूं कि इन्होंने ये बम लगाते हैं, इनोसेंट लोगों को मार देते हैं। ये कोई इंसान का काम थोड़ी है, ये इंसानियत का काम नहीं है, ये तो शैतान का काम है। नंबर वन। मैं बहुत इंटरेस्टिंग आपके सामने एक बात रखता हूं। एक बार क्या हुआ कि ये बात 2006-2007 की है। मैं फ्रांस में था। प्रेसिडेंट दैट टाइम प्रेसिडेंट सरकोजी
फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मुझे बुलाया था एक प्रोग्राम के लिए। तो मैं प्रोग्राम करके उनके साथ निकल रहा था, तो मुझे एक लेडी मिली फ्रांस 24 चैनल की। उसने कहा मुझे एक इंटरव्यू करना है, उनसे रिक्वेस्ट करी उन्होंने कहा यस इमाम साहब करेंगे। तो मैंने वहीं पर ही इंटरव्यू किया लाइव फ्रांस 24 चैनल पर, और जो कि लाइव चल रहा था पूरे तमाम यूरोप के अंदर। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि इस्लाम क्या है, इस्लाम के बारे में पूछा, मैंने इस्लाम के बारे में बताया, सारी बात होते होते प्रॉफिट के बारे में बताया, वो भी बताया। लास्ट में मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उसका जो सवाल था मेरे लिए, मुझे हिला दिया उसने मेरी जिंदगी में, और मैं उस सवाल के लिए आज तक याद करता हूं। उस लेडी ने मुझे ऑन लाइव पर, लाइव होते हुए एक सवाल करा कि आप कह रहे हैं कि इस्लाम पीस का, सलामती का मजहब है, क्योंकि इस्लाम का माने सलामती के होते हैं। तो इस्लाम पीस का मजहब है, सलामती का मजहब है, तो ये जो टेररिज्म है ये क्या है? तो उसने कहा कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लश्कर तोयबा, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ जैश मोहम्मद? आप कह रहे हो कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, वो पीस के मैसेंजर थे। तो ये क्या, ये जो लश्कर तोयबा, जैश मोहम्मद, मोहम्मद साहब का नाम लेके इन्होंने जो सेना बनाई है और वो इनोसेंट लोगों को मारते हैं, तो क्या आपने इसको कभी अपोज किया, इस नाम को अपोज किया? तो मैं पहला आदमी था दुनिया के अंदर, जब मैंने ऑफिशियली इसको अनाउंस किया था और मैंने रिक्वेस्ट करी थी जैश मोहम्मद को और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और लश्कर तोयबा को कि मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप इस नामों को हटा के कोई शैतानों का नाम रख लीजिए, इस्लाम का या प्रॉफिट का नाम हटा दीजिए, क्योंकि आप शैतान का काम करते हैं, आप इंसान का काम, इंसानियत का काम नहीं करते। तभी से ये लोग मेरे मुखालिफ हो गए थे सारी दुनिया में कि ये इमाम, चीफ इमाम ने हमारे को शैतान कह दिया। तो शैतान को तो शैतान कहा जाएगा ना, इंसान को इंसान कहा जाएगा। आज हम इसीलिए, तो ये सब जो है ये एक शैतानियत है, और इसकी हमें भरपूर मजम्मत करनी चाहिए। हर धर्म के अंदर, हर मेजोरिटी, किसी भी धर्म में अच्छे लोगों की मेजोरिटी ज्यादा है। हर समाज में, हर धर्म में चंद लोग होते हैं, दो चार लोग हर समाज में, हर धर्म में जो खराब होते हैं, लेकिन दो लोग खराब होने से सारा समाज खराब है, चार लोग खराब है पूरा देश खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। मेजोरिटी अच्छे लोगों की है, और हम ऐसे शैतानों का मुकाबला करेंगे। आप नौजवान हैं, अब हम सब मिलकर इस विश्व से, भारत से नहीं, पाकिस्तान, पूरी दुनिया से इस आतंकवाद को खत्म करेंगे। इसका हम संकल्प लें, और इंशाल्लाह एक दिन होगा ये शैतान सब खत्म होंगे। सही कहा आपने इमाम जी की टेररिज्म इज नो रिलीजन, इट इज नो कम्युनिटी, टेररिज्म इन इटसेल्फ इज जस्ट टेररिज्म। तो जिस तरह इसने शैतान का ये जो रूप लिया है, हमें खाली भारत से ही नहीं पूरे विश्व से इसको हटाने का ये दृढ़ संकल्प लेना है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह हमारे साथ हमारे प्रधानमंत्री जी, जिस तरह आप जैसे स्पिरिचुअल और रिलीजियस लीडर्स हैं, ये और भी मुमकिन होना संभव हो सकता है। इमाम जी, एक मदरसा पे एक सवाल है, MK शर्मा जी जो पूछ रहे हैं कि इमाम सर, आपको नहीं लगता कि वी नीड टू अपग्रेड मदरसा एजुकेशन सिस्टम, like student take part in social activities, mingle with other school students and insert Indian loving syllabus and bring patriotic feelings? तो इसमें क्या आपका है? मुझे लगता है कि ये सवाल उनका जायज सवाल है, क्योंकि क्या है कि जब तक हमने जिस तरह से गुरुकुल और मदरसा के एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है, मुझे लगता है कि हमें स्कूलों के, मदरसा और स्कूलों का भी एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। और मैं आपका यूथ फाउंडेशन का सहयोग लेता हूं। हम हमारे जो मदरसा के जो यूथ होंगे, हम आपके यहाँ दे देंगे, आप अपने यूथ को स्कूल्स के, कॉलेजेस के, आप हमारे मदरसों में लाइए, और हम एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करते हैं, जिससे कि एक बड़ा बदलाव आएगा और उसको पता चलेगा। और मुझे लगता है कि हम इस मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा से जुड़कर जब हम मिलकर चलेंगे, तो भारत को, तरक्की को कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक आपने इमाम जी। क्या है, ये सवाल के सिलसिले ऐसे चलते रहते हैं, और आप तो, हम बहुत ही मेहरबान हैं हम सब युवाओं के प्रति भी, जिस तरह आपने एक पिता, एक गुरु का हमें स्पेस देते हुए हमें सवाल करने का आपसे ये मौका दिया। ये एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप जिस तरह, आप खाली रिलीजियस और स्पिरिचुअलिज्म की ही बात नहीं करते हैं, आप टेररिज्म की ही खाली बात नहीं करते हैं, एजुकेशन की ही नहीं, बट क्लेanलीनेस के भी आप बहुत बड़े एक एडवोकेट हैं, और आप स्वयं भी मानते हैं कि ये बहुत जरूरी है।
वो स्वयं मैंने भी आपके समीप रहते हुए देखा है। तो इमाम जी, आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? क्योंकि मुझे एक याद है आपने एक बार बताया भी था, और किस तरह ये फेज 2 में जा रहा है। डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया हैंड वॉश डिजिटल करिकुलम का आपने ये जो लॉन्च किया, और लगभग लाख से ऊपर मदरसा स्कूल्स या बच्चों तक ये बातें पहुंची है। इसमें आप थोड़ा हमें बताएं और आपका क्या मानना है, और फिर इस ये देखिए, ये जो डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया का जो कैंपेन है, बेसिकली वो स्वस्थ इंडिया, स्वच्छ इंडिया, स्वस्थ इंडिया का कैंपेन है। उस कैंपेन में मैं उनका ब्रांड एम्बेसडर हूँ, डिटॉल का। उन्होंने मुझे कहा कि इमाम साहब, हम तमाम भारत के 7.5 लाख मदरसे हैं, उन मदरसों के बीच में जाके हम स्वच्छता का कार्यक्रम शुरू करते हैं। स्वच्छता के कार्यक्रम में हमने करिकुलम बनाया, जिस पर हमने सफाई की बात करी, जिसमें आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, जो कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं इनको मालूम होगा। आपके लिए स्वच्छता के लिए, जैसे हमारे नाखून होते हैं, नाखून आमतौर पे हमारी लड़कियां, हमारे खास तौर पे लड़कियां बढ़ा लेती हैं और नाखून बढ़ जाते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि जब नाखून बढ़ जाएंगे, क्योंकि नाखून जो होता है शरीर का मैल होता है, ये बीमारी होती है। कभी भी एक तो नाखून बढ़ने नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है, ये शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है। प्लस उसके अंदर जब मैल जम जाता है तो बीमारी आती है। तो हमारे इस्लाम के अंदर अगर हमारे नाखून कटे हुए नहीं हुए और उसके अंदर मैल हुआ तो हमारे यहाँ नमाज नहीं हो सकती। ये स्वच्छता का हमारा पहला नियम है कि आपको पहले, सबसे पहले आपको सफा करने के पहले, सफाई होने से पाक होके तभी आप नमाज पढ़ सकते हैं। तो इसलिए मेरा मकसद कहने का ये है कि स्वच्छता जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है। हम भारत को स्वस्थ इसलिए बना रहे हैं कि हमारा नौजवान बच्चा जो मदरसे का है, हमारे जो बच्चे स्कूल के बच्चे हैं, ये करिकुलम इसलिए स्टार्ट किया गया कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, क्योंकि ये आने वाले हमारा हमारा सरमाया है ये बच्चे हमारे। तो इसलिए इनको जो हमने मदरसा में हमने स्टार्ट किया कि जूते बिल्कुल बाहर होने चाहिए, टॉयलेट क्लीन होने चाहिए। अभी प्रधानमंत्री जी ने जगह जगह अभी एक मिशन शुरू किया है टॉयलेट्स का, पूरे भारत के अंदर। पहले आपको याद होगा एक जमाना था, बहुत पहले की बात है, कि लोग जंगलों में सोच के ले जाया करते थे, लेकिन अब ये सब बातें नहीं है। इस समय जो भारत के अंदर जगह घर घर में टॉयलेट बन रहे हैं। स्वच्छता का ध्यान हमारे प्रधानमंत्री का ये दरअसल सोच है, ये क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना चाहते हैं। इसलिए हमारे नौजवान मदरसों के, स्कूलों के, गुरुकुल के सारे बच्चों की जिम्मेदारी है, हम सब मिलकर हम अपने भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाएं। हमारा ये एक मिशन है। राइट, मतलब ये एक बहुत ही अच्छी बात आपने कही है कि किस तरह क्लीनलीनेस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर डूइंग नमाज। मतलब अगर आप क्लीन नहीं हैं, अगर साफ सुथरे नहीं हैं, तो आप नमाज नहीं दे सकते। नहीं और पढ़ सकते। और यही एक पद्धति, हाँ, जैसे इमाम जी ने कहा आपकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है, बट तरीके तो वही है। अगर आप एग्जैक्टली। वही इमाम जी, अगर आप मंदिर जा रहे हैं या गुरुद्वारा जा रहे हैं या चर्च जा रहे हैं, विषय तो वही है। आपको आप साफ सुथरे जाते हैं, आप हाथ धो के अंदर जाते हैं, आप जूते चप्पल खोल के जाते हैं। तो एक ये जो कल्चर है क्लीनलीनेस का, ये हमारे साथ तो युगों युगों से रह रहा है। पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है। हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं, रूनू के नाथ, कृष्ण झुंझुनवाला और निहार दास, और कितने ही लोग ऐसे युवा आज सब सुन रहे हैं आप सबको, आपकी बातों को इमाम जी। और मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा आज का एक डायलॉग और कॉन्वर्सेशन रहा, जिसमें आपने, मुझे लगता है, वाइड रेंज ऑफ इश्यूज को कवर किया है। चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो निकाह हो, तलाक हो, उसके बाद चाहे वो एजुकेशन हो। मतलब कितने ही चीजों को आपने कवर किया है, और आपने बार बार ये ऐलान किया है कि ये भारत के युवा, यूथ ऑफ इंडिया ही एक है जो आगे के टॉर्च बियरर्स हैं। और हमारा धर्म कोई रिलीजियन नहीं है, हमारा धर्म एक ही है, भारत का विकास होना। हमारा धर्म एक ही है, भारत को किस तरह पुनः विश्व गुरु बनाना, या वो विश्व गुरु है उसको आगे और कैसे बढ़ाए रखना। और जिस तरह आपने विभिन्न विभिन्न कार्यों के माध्यम से, चाहे वो क्लीनलीनेस के लिए हो, डिटॉल के माध्यम से, डिटॉल स्वस्थ के माध्यम से, चाहे वो गुरुकुल मद्रसा
के एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो, चाहे वो आपने change.org के माध्यम से जिस तरह आपने उस विषय को समझा और एक्शन में लाया, मुझे लगता है हम सबके लिए ये प्रेरणा का विषय है। और फिर उसके बाद एजुकेशन में भी जिस तरह आप मानते हैं और आप करते हैं, मुझे लगता है आज सारे युवाओं के लिए ये एक प्रेरणा का विषय है। और हमें बार बार ये याद रखना है, आज सारे युवा जो सुन रहे हैं भारत से या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, कि कुछ लोगों की गलतियों के कारण या कुछ लोगों के एक्ट्स के कारण हम पूरे कम्युनिटी या पूरे देश को नहीं हम इल्जाम दे सकते हैं या बता सकते हैं कि ये इसके लिए है। हमें as it is said that we have to step into the other shoes as well, because we all are one. As it is said, we are all united in our diversities. और हम सब भाई बहन साथ मिलके जब हम बात करें, और जब यूथ ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं या यूथ ऑफ इंडिया फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, तो हम खाली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की तो बात ही नहीं है। यहाँ तो बात है, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो जू हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो अन्य कोई कम्युनिटी का हो, आदिवासी हो। यूथ ऑफ इंडिया मतलब भारत के सारे युवा मिलके हम काम कर रहे हैं, और भारत के सारे युवा हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और हमारा खाली एक ही धर्म है, हमारे लिए नेशनलिज्म, जिस तरह इमाम जी ने बताया, भारत का विकास होना, भारत के लिए काम करना, यही हमारा नेशनलिज्म है और यही हमारा अंडरस्टैंडिंग है। सो इमाम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप एकदम नमन करता हूँ कि आपने जिस तरह हम आज सारे युवाओं को प्रेरणा आपने दिया है और अपने थॉट्स को हम सबके साथ शेयर किया है, उसके लिए पुनः एक बार फिर से धन्यवाद और नमस्ते। मेरे जितने भी दर्शक ने सुना, जितने भी मेरे दर्शकों ने, जितने लोगों ने भी सुना या और सुनेंगे, मैं सबको सलाम करता हूं और मैं सबको दुआ करता हूं कि सब तुम लोग खुशहाल रहो, तुम सब कामयाब हो। हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। पूरी दुनिया के अंदर हम सब लोग जो है प्यार मोहब्बत का पैगाम दें। जितने भी इस कोविड-19 की इस महामारी में जितने भी बीमार हैं, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, ईश्वर से सब लोग सेहतमंद रहें, सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए। जो परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर हों, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले, जिनकी जो भी तमन्नाएं हैं, वो ख्वाहिशात हैं, वो पूरी हों। उन सब के लिए मैं दुआ करता हूँ और भारत हमारा विश्व गुरु बने, हमारे देश में अमन हो, पूरे विश्व में अमन हो, भाईचारा हो, यही मेरी दुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।